नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम टेली क्लासरूम के आज के शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और हम इसी दस्ते दुआ में रहते हैं कि आने वाला वक्त भी आपके लिए खैर वाफ़ियत वाला ही वक्त हो। नाज़रीन, ये प्रोग्राम एक एजुकेशनल ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं। इस प्रोग्राम में हम एक लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक लेक्चर डिलीवर करते हैं और उसके बाद हम सवाल व जवाब की निशस्त की मबनी पर एक सेशन होता है, जिस सेशन में आप हमें कॉल कर सकते हो और अपना जो भी आपका खदशा हो या कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो वो आप कर सकते हैं। सजेशन उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एक्सपर्ट। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का एक और शुमारा आपकी नज़र करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान नियाज़ भट्ट और मेरा साथ निभाएंगी हुमैरा शफ़ी। थैंक्स ब्रदर जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप यू डूइंग गुड। वेल दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि इंसान चाहे कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, लेकिन कामयाब और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मेहनती होना बहुत ज़रूरी है। सो मेहनत न करने और कामों में दिल न लगने की जो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है फोकस और ध्यान न कर पाना। इनफैक्ट दोस्तों, आज का हर दूसरा शख्स फोकस और ध्यान न कर पाने की इस परेशानी का शिकार है। इनफैक्ट भाईजान, मैंने खुद भी ये देखा हुआ है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जब भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं ना जी, वो कंटिन्यू उसको नहीं कर पाते और वो बीच में ही जल्दी उसको छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं। तो उसके लिए दूसरी ये भी वजह हो सकती है दोस्तों कि हम काम स्टार्ट करने से पहले ही नतीजे के बारे में सोचते हैं। सो बहरहाल दोस्तों, अगर हम सिर्फ नतीजे के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, सोचेंगे, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते और जो हमारा काम है उसको हम बेहतर नहीं कर सकते। सो गाइज, ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क एंड थिंक पॉजिटिव। सो वी कैन evolve a crux from that from this beautiful message that consistency is very important. Is that like that? Yeah, absolutely. Consistency is very important. We should be very consistent, and inshallah we are consistent in this program. If you think or listen about this program, this is like a pedagogical approach due to the hyper growth of the use of the digital technology, which has evolved, and these boundaries between a learner and a teacher has been removed all away, and these boundaries are pushed back because of these technologies, because you have to watch television or you have to watch your mobile on your YouTube, and you can just connect to your teacher where you can easily learn all these things, all these concepts you are confused about. If you are confused about something, you can call us on our phone number 01942481813 or 01942481832. Besides that, you can also email us on our email ID ddktelclassroom@gmail.com. I will also add here that we had a YouTube channel, DD Kashir. Please subscribe our this channel, DD Kashir channel. If you have not subscribed, please click on the bell icon. Right. Well, friends, sometimes being a student becomes very hard and you may not know like where to start, and you might lack that inspiration inside you. So no one is saying that studying is quite easy or it's kind of very enjoyable, but do always remember that when you will succeed, how beautiful it does feel at that time. So with this note, today I'm going to tell you that today we're going to know about the interesting topic called the temperature and the heat. Okay. Physics is very interesting subject. If you have a bit of mathematics and then you know physics very well, because physics is important. In fact, I think in every field of the life that physics exists there, from a writing to a walking, there exists a gravity, in having a water or a surface tension, all the life. It's all about physics. It's all there, the physics exists there. So we had a topic earlier said by Humaira, temperature and heat. Today's lecture will be delivered by Dr. Sajjad Ahmed Mir, Senior Lecturer, Physics, Government Boys Higher Secondary School. Welcome, sir, to this program. It's a blessing for us that you are here, sir. And if you have any query or any question regarding this subject, today's topic, after the class, as you know, our expert is with us, Dr. Muhammad Ikram, Professor, Department of Physics, NIT Srinagar. I welcome you here. I would like to add here that Professor Ikram had been my teacher during my college days. It's always a pleasure for me to host you today here. Thank you so much for coming here. I also welcome students from Boys Higher Secondary School, Pampur, from their side, and this is Girls Higher Secondary School, Pampur. Welcome students here. Thanks, sir. Oh, it's time to have a break. We'll be back after a short while.
ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। आज का टॉपिक टेम्परेचर एंड हीट। वैसे ये समर इट वाज वेरी हॉट एंड देयर वाज एनफ ऑफ हीट। लेट्स वी सी व्हाट टेम्परेचर एंड हीट इज। Okay, thank you, Nia Saab. Thank you, sir. I welcome all of my students in my class and good morning as well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Very good morning and walaikum assalam. Today's topic is temperature and heat. It's for the children. It has been selected to benefit our budding scientists, I can say, because they have adopted the science and therefore I call them a budding scientists. So for them this topic is, we dedicate this topic for our students who is watching this program. For them also, it's not only the students which is at shorter distance but at long distance from me, it's also dedicated to them. Now before we understand is what's temperature and what is heat, let we go first to the basics. If we go to the basics, then we have the essence of the things, how they have evolved actually. So first of all, if you say any kind of matter, whether it's existing on the globe or whether it's existing out of the globe, at any corner of the universe, but matter is all made up of the atoms, or you can say the molecules. So when it's composed of atoms and molecules, but the atoms and molecules while interacting with each other, they are not sitting idle. They are just jiggling. They are jiggling in a jiggling motion. Okay. So that jiggling, what we call, the technical name is there in physics for those, that jiggling is called the kinetic energy. So all the atoms or molecules of which a substance is made up of is always in a kind of jostling motion. So that jostling is giving the kinetic energy to the substance. Yes, sir. So what I will tell you here, what this kinetic energy actually means to that substance. You know, if this kinetic energy of the atoms of the molecules, actually it is the energy which is energy which we call the thermal energy. So the thermal energy of any substance is by virtue of the jiggling of the atoms of which the compound or the substance is made up of. You understood it now? Yes, sir. So that's the thermal energy. But what this thermal energy gives to the substance? The substance can be warmer or it can be cooler because of this kind of the energy there. Okay? Okay. So now when it was very earlier, say 18th century, तो जो वहाँ लोग थे 18th century के, जब वो डॉक्टर के पास जाते थे, when they used to see a doctor, at that time the doctor was assessing the fever of a patient by just feeling forehead. मतलब वो just उसको देख रहा था कि इसका टेम्परेचर क्या है, एक अंदाज़ा हो रहा था उसे. और अगर कोई बेकर होता था, वो अपने ऑन का टेम्परेचर एसेस करने के लिए he was actually looking at the glowing nature of the coal, whether it is red, whether it is yellowish, whether it is white and something else. From that it was assessing a temperature. And इसी तरह सपोज अगर हम विंटर के जो कोल्डनेस है उसका अंदाज़ा लगाना होता था, we just go to the pond and see the width of the freezing layer upon that freezing water layer over the pond. Okay, right. So that width decides there the type of coldness or the amount of coldness in that particular winter. Yes, so it was all, but it was measurement. It was kind of measurement, but not accurate measurement. Physics is the science which actually believes in the accurate measurement. And then this is how actually the things evolve out. And after that, say suppose you will take a strip of a metal. Okay, yes, sir. It is composed of the atoms and molecules. I already told you they are actually jiggling. Okay, so it has its energy. It has its thermal energy now. Now you understood how it has thermal energy. Right. Suppose you will take a hammer and just strike the hammer with that strip of the iron. What will happen? You just pass the kinetic energy from hammer to the atoms of that particular strip. Right, sir. So its kinetic energy will it increase, decrease, or remain the same? So it increases. And due to this increase, you can say it becomes warm. You can even feel it sometimes if you have done it at our home or by accident you have have seen this kind of activity. Let's say when we strike something, it just becomes hard because we are imparting kinetic energy to the atoms which are already in the jiggling motion. Right, sir. Okay, you understood it now? Yes. So we are increasing it. But with the passage of time, it loses this energy to the surroundings and it becomes cold again. Like that. So now what people think, you know, this heat, this kind of heat which I am actually talking of, this is it's very, very important, as this Humaira as well as Nia Sahab has told, that physics is everywhere. It is from, it has been utilized from cooking even up to the warming your feet. Right. I mean, why not? It is used everywhere in our life. If suppose heat would not have been there, the things would have been impossible for us. Okay, so it's everywhere rather than. So now I will tell you, if you keep in contact two bodies, one is a warm body and another is a cold body, what will happen? So some amount of the thermal energy from one body transports to the another body. Right. Transports to the another body.
Okay. Now people were actually few scientists came up and they told it, how can we make the accurate measurement of the things now? Because okay, it is there, heat is there, thermal energy is there, so how can we make the measurement of this? So what they did, those scientists, what they did actually, they work on these things, and then I will give you an example. That example is best for students because it's I will come to your level. See, if we'll suppose have a hot ball of water, and simultaneously we have a red heated drawing pin which we are using in the labs, laboratories, Right, sir. red hotted, and at other side we have a big hot ball of water. Okay. Yes. So both are composed of the atoms, just like I will show you here. Look at here. This means a zoomed part of a ball water which is inside a bowl. Okay, this is zoomed part. This is the zoomed part of it. Okay. So the water is composed of, say, suppose molecules. So these are those molecules, like that. And here I have shown you the drying pin. It's all also composed of those atoms because. Okay. So now this is red hot and this is a hot water here. Bowl of hot water. Okay. So now what we will do? We will do here one thing. If suppose we will insert this drawing pin inside this hot bowl of water, what will happen? What do you expect? What do you expect? It will transport its heat. Okay, transport from where to where? I think from drawing pin to the water. Okay, so please give me a minute and you will understand everything. I told you thermal energy is nothing but it's a kinetic energy of the atoms or molecules of which the substance is made up of. This means the number of atoms, if the kinetic energy of all the atoms or molecules of which the compound is made up of, if we will add up those kinetic energies, that is equal to the thermal energy of the substance. Okay, it is the sum of the kinetic energies of all the atoms of which the substance is made up of. Understood? So now say here it's a red hot, so the thermal energy of this drawing pin will be the sum of the kinetic energy of these atoms of which it is made up of. Okay, so here in case of hot bowl, the kinetic energy, I mean the thermal energy will be sum of the kinetic energy of this these atoms of which this water, hot water is made up of. Okay. So now suppose we assume it consists of 5,000 atoms, we assume. Okay, and this consists of a 10 number of atoms, say 10 atoms are there. And here this is red hot. Okay, red hot means the vibration of the atoms is more there. Okay, here vibration is small. So let me, for the sake of discussion only here, I will tell you, suppose one atom of a water corresponds to 1 joule of kinetic energy. However, here it corresponds to 10 joules of energy, suppose. But it consists of a 10 number of atoms, so 10 into 10 is 100 joules. So therefore, इसकी जो total energy है, thermal energy, वो कितनी है फिर 100 joules. तो इसका suppose 1 joule है, लेकिन 5,000 atoms हैं, तो 5,000 into 1, 5,000 joules. किसके पास thermal energy ज़्यादा है? What? Hot के पास. तो आपने क्या बोला अभी? आपने बोला heat exchange हो रही है drawing pin से लेकर. इससे क्या पता चला हमें? यहाँ पर तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हाई थर्मल एनर्जी से लो थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी कि लो थर्मल से हाई थर्मल हो रहे हैं? लो थर्मल से हाई हो रहे हैं, जो लॉजिक के खिलाफ है आपको. बट वन थिंग अंडरस्टैंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन थिंग इज, अगर हम इंडिविजुअली लेंगे एटम का, एक इंडिविजुअली एटम का लेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ दिस इस ड्राइंग पिन, अगर मैं बताऊंगा एवरेज किनेटिक एनर्जी पर एटम, हियर इट इज पर एटम, वो किस में ज्यादा, वो ड्राइंग पिन में ज्यादा है कि वो हॉट ड्राइंग पिन में ज्यादा है? तो ये जो है ना, ये चीज जो ड्राइंग पिन में ज्यादा है, इट्स नोन एज टेम्परेचर. दिस इज नोन एज टेम्परेचर. जी सर. So this kinetic energy per atom decides the temperature of a substance. Or you know that how much important are these per unit things for us, like the density. I told you it's not a mass, it's mass per unit volume. So this density is very important for its marketing purpose. So here temperature is kinetic, average kinetic energy, but per atom or per molecule. And this is maximum in case of a drawing pin. So what we have learned out of it, that heat transfers from a substance at higher temperature to the substance at lower temperature. This is the law. So if somebody will ask you what is the temperature, earlier you could have told him, responded him like this: the temperature is a quantity which measures the coldness or hotness of a body with respect to some standard. It was, but now a definition got very sharpened for you. So the definition like this: the temperature is the average kinetic energy per atom of a substance. So you understood it? Yes, you can easily do it at your home. Easily you can do it. You can just make a red hot drawing pin that is with you. You have a ball of hot water everywhere in your kitchens and etc. You can just drop it and you can even, you know, this time, this logic. So now we understood it. It is not necessary that heat will transport from higher thermal energy to lower thermal energy, but it transports from higher temperature to lower temperature. This is the law now. Okay, you understood it? Yes, sir.
So let we move now further. We move onwards. So what is temperature and what is this? I will tell you one more thing here. Is this kinetic energy only energy of a substance? No, it's not only kinetic energy of the atoms or molecules. There are other energies, there are potential energy states, there are rotational energy states, there are vibrational energy states. All of them, when sum up, we call that internal energy. Okay, what is it? Internal energy. Fine, you understood it? Yes, so the thermal energy is the part of internal energy. Thermal energy is a part of it. It's not all internal energy, it's a part of internal energy. अब आप देखिए यहाँ पर बहुत मज़ेदार चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आपको. So जब हम दो बॉडीज़ को कांटेक्ट में रखेंगे, अब अभी आपने सीखा यहाँ से वहाँ क्या हो जाएगा, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट, थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है कहाँ से, बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. अभी सीखा हमने, ठीक है. तो ये कौन सी एनर्जी है, ये वो थर्मल एनर्जी थी. किसके, जो थर्मल एनर्जी किसके पास थी, उस ड्राइंग पिन के पास, इस वक्त जो हमारे एग्जांपल में था. और किस में ट्रांसपोर्ट कर दी इसने, हॉट वाटर में की ना ट्रांसफर. अब ये कौन सी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ये उस इंटरनल एनर्जी में से वो थर्मल एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, नॉट सारी, only that thermal energy. ठीक है. अब जब ये थर्मल एनर्जी यहाँ हो गई ट्रांसफर, दैट पार्ट, दैट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी विच ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी टू द इज कॉल्ड द हीट. उसको हीट बोलते हैं. इट्स नॉट ऑल थर्मल एनर्जी. अगेन मैं बोल रहा हूँ, हालांकि जब हम क्लास 12th में कहीं भी पढ़ाते हैं, हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी एंड हीट इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. और बिकॉज यस एनर्जी है तो डायमेंशंस आपको सेम आ जाएंगी, बट व्हेन यू गो टू द एसेंस एंड द बेसिक्स ऑफ द कांसेप्ट, यू विल से दे आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. Heat is only that part from the thermal energy which gets transported from one body to the another. Due to which? Due to temperature difference. You understood it very well. Yes, so now the both concepts are clear to you, temperature as well as heat. I will repeat for you what is temperature, because this is the topic, so you should know these things. What is temperature? Is the average kinetic energy per atom of a substance. Okay? किस substance की हम बात कर रहे होंगे, तो उस substance की. What is heat? It is the amount of that thermal energy which transported from one body to the another body under the effect of temperature difference. ये प्लीज आप याद रख लीजिएगा. इस तरीके से आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है. Now people went for that, how to measure the temperature, how to measure the temperature. देखिए बच्चों, आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा लाइफ के लिए आपको ये क्लास होगा, क्योंकि एक बार हम आपको पढ़ाएंगे, उम्र भर के लिए आपके साथ रहेगा. तो जब एक सबस्टेंस को आप हीट देते हो, अब हीट समझ में आ रहा है ना, अब मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज हीट में यूज कर सकता हूँ. अब जब एक सबस्टेंस को आप हीट देते हो ना, तो बच्चों उसमें बहुत सारी चेंजेस आती है. वो सबस्टेंस नहीं रहता, वो जो प्री हीटेड सबस्टेंस था, जब पोस्ट हीटेड उसका तकदीर आप देखोगे वो डिफरेंट होगा. जस्ट लाइक उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, उसके इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होंगे. तो हमारे सर डॉक्टर इकराम तो हैं, उनको तो बिल्कुल यही काम है, आप समझ गए ना, यही स्टडी करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. हमने तो बस यही किया इनके साथ, ठीक है. तो उसके अलावा एक चीज़ होती है जो आप लोगों के लिए सिंपल है, वो आप लोगों के सिंपल है कि हीट देने से इसका साइज भी चेंज होता है. और जो अर्लियर लोग जैसे 18th सेंचुरी के, उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है. जैसे नियाज भाई ने भी बोला, इट ब्रिजेस अ गैप बिटवीन स्टूडेंट एंड ए टीचर. इट ब्रिजेस अ गैप, वो जो थी. अब आजकल तो वो गैप कम है, तब तो बहुत ज्यादा थी ना. तो तब देखिए कैसे लोग सोच रहे थे, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस. दे वर फिलोसॉफिकल. टुडेज वी आर मिसिंग दैट फैक्टर एक्चुअली. That's why we are not producing that kind of scientists which were earlier, like Einstein and stature of Einstein and Newton. Okay? जी sir. So now the scientists thought on this, how to measure the टेम्परेचर ऑफ सबस्टेंस. ओके, यू नो मैंने बोला कि जब आप हीट दोगे किसी सबस्टेंस के, इसके सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज के चेंज हो जाते हैं. उसमें एक सबसे कॉन्वेंट मेथड जानना हमारे लिए वो है साइज. वो क्या है, साइज. बाकी हमारे लिए डिफिकल्ट था 18th सेंचुरी में. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या, हम क्या अपनी टंग उसको लगाते, उसको बोलते हैं आपके रेजिस्टेंस को क्या हुआ. आप समझ गए ना कुछ. हम क्या लगाते हैं, आपके कानों के पास रखते तो उसको बोल के आपकी मैग्नेटिक बिहेवियर का क्या हिसाब है. लेकिन साइज, हमारी दो आंखें नेकेड आइज वर इनफ फॉर असेसिंग द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट. आप समझ गए ना कुछ. वो हम देख सकते थे, यानी उस वक्त वो आराम से देख सकते. उन्होंने इसी चीज को एक्सप्लॉइट करके ऐसी डिवाइस निकाली जिससे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं. और उन डिवाइसेस का नाम उन्होंने रखा है थर्मोमीटर्स. क्या रखा है नाम, थर्मोमीटर्स. तो थर्मोमीटर, वन ऑफ द थर्मोमीटर इज हियर. मैं आपको दिखा सकता हूँ. ये है थर्मोमीटर जो आपने घरों में भी शायद देखा होगा पहले. ये थर्मोमीटर. ओके, इसमें क्या है ये देखिए, मैं आपको सब बताऊंगा. ये थर्मोमीटर है जो हमारे लैब्स में अवेलेबल है, हमारे गाँव में अवेलेबल है. मैं आपको समझाऊंगा उन्होंने क्या किया. मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेस्ट साइंटिस्ट का. उसका एंड्री सेल्सियस एक साइंटिस्ट था, बहुत फेमस, आपको पता है. सेल्सियस उसी का यूनिट है टेम्परेचर का. तो एंड्री सेल्सियस ही वाज अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर. उसने पहले स्टार्ट किया. उसने क्या किया, उसने बोला कि अगर हम किसी भी फ्लूइड को, किसी भी लिक्विड को अगर हम
हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो इसी वही बेसिक्स आपने उसने लिया। उसने क्या किया, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्विक करूँगा बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। सो उसने एक मर्करी लिया। मर्करी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। ये देखिए मर्करी यहाँ पर पड़ा हुआ है नीचे बल्ब में। तो ऐसे लिया, ये किस में रखा, गिलास में रखा, और फिर उसको उठाया और रखा वाटर के ऊपर जो फ्रीज हुआ होगा वाटर, फ्रीजिंग वाटर पे रखा, फ्रीजिंग पॉइंट पे। और जो रखा तो इसको देखा कि इसकी लेवल, मर्करी की लेवल क्या है, और वहाँ मार्क किया। क्या किया, मार्क। और उस मार्क का उसने सपोज ये है, मैं ये सीधी कहूँगा आप लोगों को, उस मार्क को जैसे ये है थर्मोमीटर, और उस मार्क को उसने यहाँ पर 0 नाम रखा। सो उस मार्क को 0, समझ में आया। फिर उसके बाद उसने उठाया और फिर बॉयल किया वाटर को। इट वाज वेरी मच पॉसिबल फॉर देम एट दैट टाइम। इट्स इजी एक्टिविटी, ओके, इजी प्रोसेस। सो उन्होंने जब रखा बॉइलिंग पॉइंट पे और फिर देखा कि इसकी लेवल, मर्करी की लेवल इस गिलास में क्या रही एक्सपेंशन पे, और उसका उन्होंने 100 नाम रखा। यहाँ पर क्या रखा, 100 नाम। इसी तरीके से इसको 100 ग्रेड्स में इसको ऐसे दे दिए, 100 ग्रेड्स, यानी 100 डिविजन उसने बना दी, 100 ग्रेड्स बना दी, 100 डिविजन्स बिटवीन 0 एंड 100। तो फिर इसको नाम दिया इस थर्मोमीटर को सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। सेंटी मीन्स 100, इसके 100 ग्रेड्स होते हैं, सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। लेकिन बाद में उसका नाम दिया गया सेंटीग्रेड के बाद। चलिए अब इन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट सेल्सियस थर्मोमीटर ही नाम रखेंगे इसको, अदरवाइज अर्लियर इट वाज नेम्ड एज सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। अब यू अंडरस्टूड इट। सो अब उसने गिलास क्यों यूज किया, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज जब हम टेम्परेचर पे रखेंगे, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे इस मटेरियल को, ये दोनों हीट हो जाएंगे, मर्करी भी हो जाएगा और गिलास भी हो जाएगा। अगर हम कोई और सबस्टेंस इसके साथ, तो वो भी एक्सपेंड होता। सपोज फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई विल टेल यू कि गिलास भी एक्सपेंड होता, तो इसकी लेवल कहाँ बढ़ती है, मर्करी की नहीं बढ़ती। तो गिलास एट सेम रेट एक्सपेंड नहीं हो रहा है, इसीलिए उसने क्या रखा, गिलास। और बहुत सारे प्रॉपर्टी, दिस वन ऑफ द प्रॉपर्टी, और बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं कि ये स्टिक नहीं हो रहा है मर्करी गिलास के साथ, जब वापस आ रहे हैं उसके साथ स्टिक नहीं हो रहा है, जल्दी वापस आ रहे हैं, और बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं। सर कैन वी कॉल इट सेल्सियस स्केल ऑफ टेंपरेचर? हाँ, सेल्सियस स्केल ऑफ टेंपरेचर, दिस इज सेल्सियस स्केल ऑफ टेंपरेचर। ओके, सो नाउ दिस वाज द टेंपरेचर स्केल। तो देखिए कैसे कैलिब्रेट उसने किया, आपने देखा कैसे कैलिब्रेट किया उसने, दिस वे। सो इसका मतलब जिसको यहाँ पर 0 टेम्परेचर आ जाएगा, इसका मतलब इसका टेम्परेचर इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। जिसका 100 आ जाएगा तो उसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। जिसका कुछ हो जाएगा इन बिटवीन, तो हम वो एसेस कर सकते हैं, जैसे हम बॉडी टेम्परेचर को एसेस करते हैं। आप समझ गए, इस तरीके से उन्होंने हमें मेजरमेंट दी। वाज इट बेटर मेजरमेंट rather than just feeling the forehead of that patient? Yes sir. This is the better, this is more accurate. ये इसी की तरफ जा रहे हैं। आजकल के जो थर्मोमीटर्स हैं वो तो रेजिस्टेंस बेस्ड है, मैंने पहले ही बोला, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहे हैं। लेकिन दिस वाज 18th सेंचुरी, देखो ना, हमें उनको दाद देनी पड़ेगी उस टाइम, उन्होंने कितना काम हमारे लिए किया, ठीक है। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फ़ारेनहाइट। क्या नाम था उनका? फ़ारेनहाइट। ही वाज फ्रॉम जर्मनी। उसने अपनी एक और दूसरी स्केल दे दी, ठीक है। क्या दी? दूसरी स्केल, दूसरी टेम्परेचर स्केल उसने दे दी। और जो दूसरी टेम्परेचर स्केल उसने दे दी, उसने वो थर्मोमीटर जो बनाया अपना, उसने ये डिफरेंस उसमें की उस थर्मोमीटर में। स्टार्टिंग पॉइंट यानी जहाँ इसका 0 है वहाँ उसने 32 दिया, और जहाँ यहाँ मैक्सिमम है वहाँ पर उसने 312 दे दिया। And every division is a degree, okay? So इसमें 180 डिविजन्स हैं। कितने? 180। इसमें कितने थे टोटल? 100। यहाँ पर डिविजन्स टोटल 100 थे, आप समझ गए ना। और यहाँ पर अब आगे अगर आप दोनों को माइनस करोगे, वहाँ पर आ जाएंगे 180 डिविजन्स, लाइक दिस। ये दूसरी स्केल दी उसने, ठीक है। तो हम इन दो स्केल्स के बीच में एक कोरिलेशन बना सकते हैं। देखिए कोरिलेशन क्या, आप समझ लेना। सी फॉर, मैं सी को सेल्सियस मानूंगा, एफ को फ़ारेनहाइट मानूंगा, ठीक है। मैं देखिए कैसे बनाऊंगा। इज सी इज सेंटीग्रेड टेम्परेचर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर? नो, इट्स नॉट सेम, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनस करें, कहाँ से शुरू होगा? 32 से शुरू। ये पार्ट तो प्लीज उसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वन मोर थिंग, इसके कितने डिविजन थे? 100। इसके कितने डिविजन? 180। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। समझ आ रहा है आपको? ये है रिलेशनशिप बिटवीन द टू। द टेम्परेचर जो है सेल्सियस टेम्परेचर एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में ये डिफरेंस है। सो जैसे मैं आपको बताऊंगा, सपोज दिस एफ इज 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो 32 माइनस 32, ये 0 बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, आप समझ गए ना। सो देखिए ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C इक्वल 0। हम जानते हैं यस, जहाँ फ़ारेनहाइट का 32 है वहाँ इसका 0 है। अगर हम 312 देंगे फ़ारेनहाइट को, 312 को माइनस 32 कीजिए, वो काटने के बाद कितना आ जाएगा वहाँ पर? हाँ, तो 180 डिवाइड बाई 181 आ जाएगा। इस 100 को वहाँ ले जाओ, 100 इंटू 100, तो ये आपका टेम्परेचर है। दिस इज दिस करेक्ट ना? मैंने दोनों एक्सट्रीम पे आपको दिखाया, ये करेक्ट आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, C इज इक्वल टू 100 बाई 180, ठीक है। 100 बाई 180 F माइनस 32, ऐसे भी इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। इसका मतलब इफ यू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यहाँ जब यहाँ से जो डिविजन्स हैं, यहाँ से 100 डिविजन्स मान लीजिए आप, कितने डिविजन्स? 100 डिविजन। और यहाँ से आप यहाँ तक 180 डिविजन्स मान लीजिए,
और इनके बीच में जब प्लॉट करोगे, दिस इज हैंडनबर्ग्स दिस स्लोप, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ 32 से ऐड हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर इंटरसेप्ट है कितना 32। अगर 32 इंटरसेप्ट 0 से स्टार्ट हो जाता है 32 से और फिर स्ट्रेट आ जाएगी, देखो ना, y इज इक्वल टू mx। मैथमेटिक्स वालों के अच्छे से समझ आए स्केल कैसे बन गई, ये अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? बहुत मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और देखो स्ट्रेट लाइन है उनके बीच में, मैंने ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन दी, ए रिलेशनशिप बिटवीन ए सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट। आप समझ गए कुछ? तो इसी तरीके से फिर और बहुत सारी स्केल्स आ गई, इट वाज नॉट ओनली देन रैंकिन स्केल वाज देयर एंड बहुत सारी स्केल, इवन यू कैन मेक योर स्केल, यू कैन मेक। और मैं आपको बताऊं, लोगों ने मर्करी नहीं, लोगों ने तो कलर्ड अल्कोहल भी यूज़ किया, मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो भी मेरे साथ है, देखिए यहाँ पर मर्करी यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर कलर्ड अल्कोहल यूज़ हुआ। अल्कोहल यूज हुआ है। सो कांट यू मेक ए थर्मोमीटर फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर द सेक ऑफ योर इंटरेस्ट एट योर होम, किसी और मटेरियल से कर सकते हैं ना? तो घर में जाए आज के बाद स्टार्ट अपना थर्मोमीटर, उसको कैलिब्रेट कीजिए, आपका 0 यहाँ आ रहा है, आपका 100 यहाँ आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, अपना एक थर्मोमीटर बना दीजिए घर में, ताकि आपके घर वालों को भी पता चलेगा कि इन बच्चों को साइंस समझ में आया, ये हिस्ट्री ऑफ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, ये साइंस डूइंग ऑफ साइंस कर रहे हैं, ठीक है? और उसके देखिए एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात आपको, आप प्लीज़ उसको बेसिक समझिए, बेसिक्स अंडरस्टैंड हो गए तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद एक केल्विन स्केल हमारे पास है, कौन सी? केल्विन। लेकिन मैं आपको उसकी अफादियत बोलूँ, मैंने पहले जब स्टार्ट किया इस लेक्चर को, मैंने बोला एक सबस्टेंस में जो होता है, जिस एटम्स का बना होता है, वो चुपचाप नहीं होते, वो कंटिन्यूअली जिगलिंग होते हैं, ठीक है? तो जब आप कीजिए, जब इसने दिया, सेल्सियस ने दिया या फ़ारेनहाइट ने दिया, इसने फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया, क्या इसका मतलब है कि वो काइनेटिक एनर्जी यानी आइटम्स फ्रीज हो जाते हैं, वो फिर वाइब्रेट नहीं करते? नहीं, वो येट वाइब्रेट करते हैं। क्या उनका मतलब था कि बस यहीं तक टेम्परेचर जा सकते हैं, इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। बाद में लोगों की इसकी ज़रूरत पड़ी कि ठीक है ये 0 है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इससे नीचे को क्या हम क्या बोलेंगे? आप समझ गए कुछ? कहाँ तक जाएंगे, कितना नीचे टेम्परेचर जा सकता है? मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोअर टेम्परेचर है, देखो क्या होता है, केल्विन ने क्या बताया, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी सबस्टेंस का वॉल्यूम होता है, क्या मैं फिर से बोलता हूँ, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी भी सबस्टेंस का वॉल्यूम होता है, तो जितना आप 1 डिग्री इसको बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम 1/273 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। कितना? 1/273। सो मैं यहाँ पर मुझे प्लीज़ आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर डायग्राम में, मे बी उससे आप अंडरस्टैंड करोगे, और अगर कोई डाउट होगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, घर में आपको आज थर्मोमीटर बनाना है किसी और मटेरियल का, ठीक है? ये मेरी तरफ से एक्टिविटी, यू कैन जस्ट कॉल मी देन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम लेता हूँ, एक वॉल्यूम यहाँ पर लेता हूँ मैं, ओके, लाइक दिस, एक वॉल्यूम, इसमें कोई सबस्टेंस है, और इस सबस्टेंस को मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा, लाइक दिस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, मैंने रखा, तो इसका वॉल्यूम मैं मानता हूँ, मतलब कुछ वॉल्यूम 1 उसको रेफरेंस लेंगे 1। अगर मैं इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आप समझ गए ना? क्या बढ़ाऊंगा? 1, यानी अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखूंगा मैं इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम कितना हो गया? क्योंकि मैंने बोला 1 डिग्री से 1/123 ऐड हो जाते हैं, इसका वॉल्यूम होगा 1 + 1/273, इतना वॉल्यूम होगा। सो V इज हियर 1, V इज हियर 1 + 1/23, ठीक है? लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में घटाओगे, आप समझ गए ना, आपने इसी सबस्टेंस को, सेम वॉल्यूम को आपने अब 1 डिग्री घटा दी, आप समझ गए ना, घटा दी टेम्परेचर, तो यहाँ इसका वॉल्यूम भी इतना घटेगा, ऐसे, ये देखिए घटेगा इतना वॉल्यूम, समझ में आ रहा है? मैं आप बोल रहा हूँ आपको सीधी, अगर मैंने इसको और बढ़ा दिया और इंक्रीज कर दिया, और मैंने इसको सपोज 273 यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया, what shall happen? V is equal to 1 + 273 divided by 273. So V is equal to twice, दुगना हो जाएगा वॉल्यूम। yes, किस टेम्परेचर पे? 273 सबस्टेंस का। लेकिन अगर मैं यहाँ करूँगा, अगर मैं यहाँ -270 यानी घटाऊंगा, ठीक है, मैंने यहाँ घटाया, और घटाने के बाद जो वॉल्यूम यहाँ पर होगा, V is equal to 1 - 273 divided by 273. So V is equal to 1 minus V is equal to 0. अरे this is a quite surprising result. Isn't that surprising result? ये हमारे पूर्वजों ने किया है फिजिक्स में। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? Is this possible? You have a matter, it is composed of atoms and its volume becomes 0. No sir. कहीं ख्याल में भी नहीं आएगा हमें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम इससे नीचे अब नहीं जा सकते हैं टेम्परेचर में, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जा सकते। उसी का नाम केल्विन ने बोला 0 केल्विन, बोला यहाँ से स्केल स्टार्ट करेंगे, इसलिए वहां से स्टार्ट है केल्विन, मजबूर थे हम वहां से स्टार्ट करना, और इसीलिए बताया ये स्केल बेटर है, जो आपको बता रहा है कि हमें 0 चाहिए जहां से टेम्परेचर एंड स्टार्ट हो रहा है, कि बीच में से स्टार्ट करेगा, विच इज द बेटर स्केल।
The Kelvin scale. That's why it fetches the SI. It actually compels the international community to put it as SI unit. Kelvin. Yes sir. आप समझ गए कुछ? अदरवाइज ये सारे ठीक हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नथिंग. बट ये स्टार देखो कहाँ से, अगर वॉल्यूम जीरो है, मतलब वॉल्यूम जीरो होगा ही नहीं, तो प्रेशर भी यहाँ पर क्या बनेगा? जीरो. विच इज नॉट पॉसिबल. यू हैव एटम्स, दे आर वाइब्रेटिंग एंड योर प्रेशर गेट्स जीरो. दिस इज इम्पॉसिबल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वी कैन नेवर गो डाउन द जीरो केल्विन टेम्परेचर -273. सो अब हमें क्या पता चला कि लोअर एंड टेम्परेचर स्केल का हमें पता है कितना है वो? जीरो केल्विन और -273. आप समझ रहे हो बात को? सो जब मैं रिलेशन दूंगा बीच दोनों के बीच में रिलेशन दूंगा, मैं बताऊंगा जो C है इज इट केल्विन के बराबर? नो, इट्स नॉट केल्विन. आपको माइनस करना पड़ेगा 273. तभी जब आप 0 केल्विन दोगे, C = 0 - 273, तब आपको 273 डिग्री सेंटीग्रेड जवाब आ जाएगा. आप समझ गए ना? यस सर. तो इसका मतलब ये है, अगर आपका अभी रिलेशनशिप, तो अभी आपके पास दो रिलेशनशिप थे, C/100 इज इक्वल टू F - 32 डिवाइड बाई 180. अगर आपको इसके साथ इसको मुकाबला कराना है, C के बदले आप K - 273 दे दो और फिर वही 100 रख दो वापस. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री स्केल्स. समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं इतना ही C के बदले लिखा, मैंने K - 273, लेकिन यहाँ से गलत हो जाएगा, नीचे से 100 है तो 100 नीचे. आप समझ गए कुछ? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री scales. This way you can convert. You can convert the things. Okay? आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? Convert कर सकते हो temperatures में. आप understand किया इसको? So जो higher temperature अब है, higher temperature का yet nobody knows what is the limit of higher temperature. Higher end of the temperature. Lower end is with us. बट हायर एंड हमें नहीं पता है. मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ, डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर हमारे लैब्स में जो होता है. सर को तो पता है हम हीलियम पे काम कर रहे हैं, हीलियम से हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं लो टेम्परेचर पे, नाइट्रोजन से. तो जब हम कर रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जा रहे हैं? हम 0.15 0.2 केल्विन तक पहुँच रहे हैं, लेकिन जीरो पर नहीं पहुँच रहे. इवन इफ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इवन इफ अगर हम 0 केल्विन पे पहुँच रहे हैं, येट देयर इज अ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स, तो भी है. इसका मतलब थोड़ा सा कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ पे होती है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज 0 पॉइंट एनर्जी. आप समझ गए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी. ये आप अंडरस्टैंड किए? यस सर. अच्छे से अंडरस्टैंड किए? मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर कराता हूँ. अभी मेरे पास कितना टाइम है नियाज भाई? We still have 7 to 8 10 minutes. Okay, good. So we have a good time for that, it. sir, I have a question. Yes. Sir, what is the need of measuring temperature instead of heat? Or then instead of it, okay, say suppose we say what is the need of, because heat is actually first of all when heat gets transferred. Heat gets only transferred when there is a temperature difference. You should know first temperature difference, and from that you can calculate the heat. Right, sir. So that's why. Okay, so first you should know. So first we need to measure temperature. Then only you can go to the heat. Yes, because when there is a temperature, only then heat is transferred. Once again for you students, मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ what is heat. आप बोल सकते हैं heat जो है, अगर कोई आपको ऐसे बोलेगा, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ. A substance contains heat. What is your response? Does a substance contains heat? मैं question mark आपको दे रहा हूँ. No, big no. It does not contain heat. It contains internal energy. Yes, sir. क्योंकि वहाँ वो heat form में नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी में. उस इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है? थर्मल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वाइब्रेशनल, रोटेशन. और जब आप इसको किसी के साथ कांटेक्ट में रखोगे, जो पार्ट थर्मल एनर्जी से निकलेगा वो हीट है. इसलिए तो मैं पहले से बोल रहा था. अब आप अंडरस्टैंड किए सबको, डिफरेंस को अंडरस्टैंड किए. तो हीट जो है वो थर्मल के जो थर्मल एनर्जी का पार्ट है, जब वो फ्लो हो जाएगा. और थर्मल एनर्जी क्या है? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. और टेम्परेचर क्या है? इट्स द काइनेटिक एनर्जी पर एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस. ओके ओके गुड. फिर 0 केल्विन पे जो मैटर है इसके सारे स्टेट्स एक ही फेज में होंगे. तो वही तो हम बोल रहे हैं. हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर जीरो वॉल्यूम. व्हाट इज यू मीन बाय जीरो वॉल्यूम? What do you mean by zero volume? Nothing. You mean there is nothing. Yes, sir. It's not possible for us to have that kind of volume, zero volume. So there is a practical limit for that. Okay, theoretically this is possible. Okay, practical limit is there. So now we are going for that zero temperature and then try to study the behavior of the materials at 0 Kelvin. We did up to 0 point Kelvin. We did the measurements. Yes. So if volume is in negative, right? Volume can never be negative. This is absolute. So like you said, volume here it is. It becomes zero. So मैं zero पे बोल रहा हूँ, चर्चा करें कि zero possible नहीं तो negative. Smaller than the No, zero. it's not possible. नेगेटिव. So वो एक imagination. Yes, sir. Okay, no problem. I understood. अब दो students आ जाए, but इस side में आएंगे दो students. कोई भी दो. Yes, sir. आप जाओ. मगर हाँ, आ जाओ please. आप डरते One from boys, one from boys. Okay, come. One from boy and one from you. Please. From here. Come here. So मैं यहाँ पर we have cold water. Sir, I'm sorry. Yeah, मुझे you can आपका use cold the water water. लेना पड़ेगा Yes, sir. please. For the sake of science, sir. Yes.
We are from the science. ये कोल्ड वाटर है, ये मैंने डिलिबरेटली रखा, मतलब सेम बीकर मैंने यहाँ रखा डिलिबरेटली, ताकि ये जो कंटेंट रहेगा वो सेम रहेगा, तभी तो आप थोड़ा सा इसको करोगे, मैं आप समझोगे कि व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी काइंड ऑफ थिंग्स। तो मैं 500 ml इसमें भी रख दूंगा। You can use more. बस नो आई टुक ओनली दिस मच, और हॉट वाटर मेरे साथ है। Okay. Thank you. क्या so करता much. सो यहाँ पर मैं It हॉट shows वाटर dedication from your side. 200 ml है इसका, should have be bigger than this. So now this beaker is hot, on the right it is hot and on the left it is cold, okay? Yes, Please sir. remember it, फिर बाद में नहीं बोलना ये हमें चकमा दे रहा है जवाब। Okay. The steam itself depicts Okay. that it's a hot. Yes, huh? yes, it's a hot water. Now I have a food color with me. You can use ink also, but I have food color. आप 2 होल्ड कीजिए, 2 चम्मच, ठीक है? 2 होल्ड कीजिए आप भी, और आप भी होल्ड कीजिए, ठीक है? अब मैं फूड कलर आपको भी उतना कंटेंट दूंगा, उनको भी एक ही कंटेंट दूंगा, और फिर बताऊंगा इसको क्या मिक्स करने के लिए। फाइन? सो आइए यहाँ पर, इतना कंटेंट ठीक है, आप भी सेम कंटेंट आपको भी रखेंगे। आई थिंक इट बिकम्स मोर, नो नो, अब तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये लैब नहीं है, It's enough. वहाँ पर आपको सब कुछ है। तो देखिए आप एक साथ आप दोनों डाल दीजिए इसमें, और देन देखिए बिफोर दे विल ड्रॉप इट इनसाइड इट, हमें नोट्स करना है किस में मिक्सिंग जल्दी हो जाएगी, Yes, sir. ठीक है? देखेंगे, sir. आप एक साथ Focus डालिए on प्लीज़, this. Yes, please. बस उठाओ, चरक मत दो, किस में? Hot देखो, water. कोल्ड तो अभी भी नहीं हो रहा है, अभी Yes, अभी sir. नहीं हो रहा कोल्ड में धीरे धीरे हो रहा है, यू नोट्स इट? Yes, sir. तो इसमें देखो एकदम यहाँ पर मिक्सिंग होगा, वाई? बताइए क्यों? Temperature difference. क्योंकि इसमें किनेटिक एनर्जी ऑफ द Kinetic energy is मॉलिक्यूल, more. उसने इसको जल्दी करा, Yes, sir. जिगलिंग ऑफ द मैं बोलता हूँ, Kinetic energy. उसने उसको मजबूरन कर दिया जल्दी। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करने हैं, बेसिक्स, और फिर हम उसको थोड़ा एडिट करेंगे, थोड़ा दूसरे दिशा से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समथिंग एल्स लाइक दैट, वो चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं। ओके, समझ में आया? देखो वो Yes, अभी sir. कोल्ड अभी भी नहीं हो रहा है, Yes, sir. अभी भी नहीं हो, और ये उतना कोल्ड नहीं था, ये वार्म था बाय द वे यहाँ No, पर, it was. ये उतना कोल्ड नहीं था, फिर भी देखिए हॉट वाटर यहाँ तक कितना जल्दी हो गया, बिकॉज ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। मेक यूज ऑफ दिस थिंग्स, दिस इज अ साइंस एक्चुअली। सो आई थॉट कि दिस वन इज वेरी इजी फॉर यू, Yes, sir. तो Yes, मैंने sir. आपको दे। So now that you talk about this hot water, Yes. आपसे ये भी जानना चाहेंगे why fire is hot? What makes it hot? Like Okay, why fire is hot? Yes. See, actually fire is something different. It's a chemical reaction. When you actually lit something, okay, what happens there? Some bonds gets break up. yes, sir. Okay, so due to the breakage of the bonds, the heat come out there. Okay, Energy so it's release. actually hotness is that. So it is the breakage of the bonds. Breakage of Some the energy come out and it becomes hot. That's why Hot. fire is hot. Yes, sir. Fire is hot. And so there is another concept, the cold fire concept. Cold fire is relatively colder. Okay, but it's not actually colder. So it is always hot because there are the breakage of the bonds, and due to Bonds. that energy is released, Release and it. that energy is the thermal part, and that becomes then heat. I Heat. mean, when you lit a substance, what happens? It possesses internal energy. Yes, sir. It possesses internal energy, Yes, sir. and when you actually give it lit it, because of that, the bonds break. Okay, Yes, the sir. part of the internal energy, I mean thermal energy, sir. that releases in the form of heat. Let me tell you one more thing. There is a food. Okay, you know the energy value of a food. How you can calculate the energy value of a food? You burn it. On Yes, sir. burning, when it burns, You'll get to how much amount of heat out of that internal energy is releasing? That is the energy value of the food. वो जो आपके उस पैक्स पे लिखा है इतने कैलोरीज, इतने कैलोरीज, इतने कैलोरीज, sir. वो तो वहीं से हमें पता चलता है। इवन फ्यूल को आप उसी से रेट करते हो। फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल एक अच्छा फ्यूल है कि बुरा फ्यूल है, आप दोनों को जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, Yes, उसके sir. बाद इंटरनल एनर्जी में से वो तो थर्मल पार्ट है, उस थर्मल पार्ट से कितना हीट रिलीज करेगा, yes, जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतना हाई रेटेड फ्यूल है। आई थिंक time is over. is sufficient. I Yes, thank sir. you all Thank for you so this much. attention. Thank you so much. sir. It was really beautiful lecture involving the students, and having this practical on this table is also too good. I think it's like a creativity is physics is almost like a creativity. Will be back in a short while. It's time to have a break. ब्रेक के बाद आप सभी का खैर मकदम है। टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट। सर आज मैं जो मेरे जहन में पहले सवाल उभर रहा है, इट वाज हॉट एंड ह्यूमिड। इज देयर एनी रोल ऑफ द हीट इन Yes, containing the moisture in an air like that? That's what I told Well, you. it's that- never cold and humid.
See, when it is humid, then droplets of water are just suspending in the air. So the water has a more specific heat compared to any sand, etc. God has, I mean, people have some problem with the nature has given us this kind of facility that this water, it's colorless, it is smell, odorless, it's odorless, so many things, and also its specific heat is very high because otherwise जब हम चाय बनाते तो ये 1 मिनट में ठंडी हो जाती है, हम क्या करते हैं? तो it loses heat slowly. So what do we mean by then specific heat? In the word specific heat इस्तेमाल किया. Special what type. we heat and a specific heat इसमें क्या? Special type of heat. Okay. See, I will tell you, when there is a resistance, there is a specific resistance. Resistance is the opposition to the flow of current, and specific resistance is per unit length. When you take it per unit length, per unit area. Same is here. Specific heat means energy which is stored in the water, but per degree temperature. Say suppose if we will tell you what is the specific heat, is the energy required to raise the temperature of a substance. Okay, sir. We had a question. We had a caller first. हमारे caller हमारे साथ जुड़े हैं अबरार अहमद बिमना से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मियां साहब. हाँ वालेकुम सलाम सर. हेलो. जी वालेकुम अस्सलाम. हेलो. हेलो वालेकुम अस्सलाम सर. हाँ मियां साहब, मुझे एक चीज बताइए. मेरा सवाल ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ हीट है ना जी, ये कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या है, ये कैसे चेंज होता है? अगर यहाँ से हॉट बबल होगा और यहाँ खाली कोल्ड कोलिजन सर प्लीज सर ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है? जब एटम जो होता है एक मिनट ट्रांसफर द हीट एटम स्टार्ट द वाइब्रेशन. अगर हम स्कूल की बात देखिए, लगभग 30-40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ लैब का नाम निशान ही नहीं है. इवन कि बच्चों को पता ही नहीं है व्हाट इज लैब, इसमें क्या होता है. इनके दो क्वेश्चंस है इकराम साहब, आपसे पूछना चाहूंगा. हाउ डज द हीट ट्रांसफर, और दूसरी बात ये कि लैब्स की कितनी जरूरत है फिजिक्स में सर? लैब तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली अप्लाइड फिजिक्स है. आपको जब भी इंजीनियरिंग जो बेस्ड अपॉन द फिजिक्स जी, तो उसको लैब विदाउट लैब तो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक उसका प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे किसी जगह. तो कैसे? और सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज द हीट ट्रांसफर? ट्रांसफर बेसिकली जब एटम को आप सब्सटेंस को हीट करते हैं तो नेचुरली वाइब्रेट्स. ओके, तो उसमें भी कोलिजन होगा. जो कोलिजन से क्या होगा, वन एटम ट्रांसफर टू अनदर एटम एंड second, third and fourth. I will add up here. I think I don't know what is his question, but what I got out of it, how many types of the heat can be transferred in many ways. One through the physical contact, okay, one through at a distance, like I said. Okay. Suppose one is called the conduction. Conduction means convection. The heat is transferred when the two materials are in contact. Another is convection. Convection means when you heat something at the down. जैसे आपके घर में आप पतीला को गर्माते हैं ना पानी को, तो वो जो hot पानी है वो ऊपर आ जाता है और कोल्ड क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है. तब वो हॉट हो जाता है, वो वापस साइकिलिंग करता है. वही हमारे घर जो मोहल्ले वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें भी वही होता है कि जो हॉट होता है, जब वो बाहर जो लिम्ब्स उस ट्रांसफार्मर के होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के, तो वहां से निकल के आता है बिकॉज हॉट होता है, तो वो वहां कोल्ड होता है, तो वापस वो वहीं से, इसलिए वहां पर वो हीट एक्सटिंग्विशर यूज होता है. और दूसरा है रेडिएशन. रेडिएशन मतलब सन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ट्रांसफर. सर शिराज मंजूर हमें ईमेल एक हमारे पास मौसूल हुआ है. अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड लेक्चर डिलीवर्ड बाय रेस्पेक्टेड सर. व्हाट इज क्यूरी पॉइंट? Curie temperature, that's in magnetism, where substance actually get converted from this ferromagnetic to the paramagnetic. Phase transition will take place. Curie means is a particular point where some magnetic phase transition takes place, like magnetic phase transition. Okay, magnetic phase transmission. एक और ईमेल मौसूल हुआ. अतीका जावेद लिखती है मंजगाम ब्रिन से. डॉक्टर सजाद अहमद मीर इज ऑलवेज फैबुलस. टुडेज लेक्चर वाज गुड. व्हाई डज वार्म एयर, आपसे पूछना चाहेंगे इकराम सर, व्हाई डज वार्म एयर राइजेस? वो मैंने भी बताया आपको. व्हाई डज वार्म एयर राइजेस मींस जो हवा गर्म होती है वो ऊपर क्यों चली जाती है? अच्छा, वो कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन की वजह से बेसिकली. उसकी वजह से उसको बताऊंगा बिकॉज वो शायद छोटी बच्ची होगी तो उसको बताएंगे पूरी तरीके से. तो वो क्या हो जाता है, जब आप हॉट करते हो किसी चीज उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो कोल्ड होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है. उसकी वजह से वो लोअर पार्ट लेता है, वो हायर बिकॉज अगेंस्ट ग्रेविटी. वही तो फायर में जो फ्लेम होती है उसमें भी ऐसा ही होता है. एक अतीब मुबारक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं कुलगाम से. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी. नंबर 1, व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड? ओके. नंबर 2, इन केस ऑफ सुपरकंडक्टर्स व्हाई मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस okay by decreasing the temperature of the conductor? So second question, do you got the second I question? got everything from you. Sir, please. सेकंड में क्या पूछा उसने? Second question. सुपरकंडक्टर्स के बारे में. I will repeat it. Okay, please. Yes, please repeat your second question.
In case of superconductor. In case of superconductors, yes. Why motion of electrons Why motion of increase electrons? by decreasing the temperature? Why motion of electrons increases by decreasing the temperature? वो उल्टा बोल रहे हैं हाँ नियाज साहब उसको चूंकि मतलब वो गलत बोल रहे हैं पहले मैं इनका उनको क्वेश्चन है दोष व्हाई नहीं- डज द 4 डिग्री सेल्सियस मैं सब टेम्परेचर मैं दोनों का इसका जवाब दूंगा जो Please, उसका sir. एक्चुअली दिल में था वो मैंने पकड़ लिया ओके सर प्लीज फर्स्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर इसका जो है डेंसिटी क्यों मैक्सिमम होती है वाटर की, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है मुझे लगता है। वो वाटर की स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, वो गॉड हैज गिवन दैट काइंड ऑफ एनॉमली इन केस ऑफ वाटर। Okay. व्हाट हैपेंस द हेक्सागोनल जो होता है, जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो जो है वहां पर उसकी जो वाइड्स हैं बीच में वो कम हो जाते हैं, उस वक्त वो डेंस हो जाता है। Okay. वो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है एक्चुअली। सो वो सिर्फ दैट एनॉमलस बिहेवियर टेक्स प्लेस ओनली इन केस ऑफ द वाटर, नॉट ऑल अदर सब्सटेंसेस। तो ये सिर्फ उसमें होता है बिकॉज़ उसकी वजह से क्या होता है, जब वो डेंस होता है तो वो जो टॉप लेयर फ्रीज होती है वो टॉप पे होती है। अदरवाइज क्या होता है कि पानी अगर उसे लाइट होता है पानी ऊपर आ जाता है, तो जो फ्रीजर लेयर है वो नीचे आ जाती है। इसकी वजह से इनवर्स होता है कि वो ऊपर हो जाते हैं अप टू 4 डिग्री से, वो नीचे आता है। उसके क्या जो एक्वेटिक लाइफ वो प्रिजर्व रहते हैं, वरना क्या होता है उन बेचारों को, वो मर जाते हैं नीचे। उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस अंदर की तरफ आ जाते हैं वो बाहर नहीं गर्म रहता है, गर्म रहता है। तो दिस एनॉमलस बिहेवियर इज एंड सेकंड क्वेश्चन वाज अबाउट दैट सुपरकंडक्टर। यस कंफ्यूजन, इट्स नॉट, वो सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, उल्टा बोल रहे हैं सुपरकंडक्टर इज नॉट ए सेमीकंडक्टर, बट सुपरकंडक्टर की कंडक्टिविटी कुछ डिफरेंट है, वो कूपर प्रेशर पे इसको समझना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन जैसे एक ही स्टेट हो जाए उसको बोलते हैं हाईली क्वालिटी स्टेट का, कूपर पे जब आप डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो उनकी एक ही स्टेट हो जाएगी। उससे क्या होगा, इंटरेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, द फ्रिक्शन और वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाता है, उल्टा लाइन पूछ में रहे चली हो। जाती है, तो उससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जीरो नहीं होता बस मिनिमम होता है। Hope you have got the answer. Atib Yasin likhte, I am the regular viewer of your program. What do you mean by latent heat and how is it different from heat? Latent heat is a heat where actually phase change takes place. Okay. So latent heat of vaporization, latent heat of melting, it changes from one phase to the another phase. आपका सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, Okay. वो कहते हैं जितनी इस चीज को, इस टेम्परेचर, इस हीट को लेटर, मतलब इतनी क्वांटिटी की हीट दे के एक फेज ट्रांजिशन हो जाए। तीन जो फेज ओके 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 सर, थैंक यू। वो हार्दिक जमवाल जम्मू से लिखते हैं, लेक्चर वाज गुड बट टीचर इज वाज अ क्विक बिट क्विक। आपके लिए है कमेंट, शायद आप थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं। जवाल साहब शायद इनको वक्त की कमी का एहसास रहता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाए उसमें। खैर सब्जेक्ट मैटर वाज वेल अंडरस्टूड। खैर ये भी लिखते हैं, प्लीज टेल मी व्हाई डू वी फील आइस इज कोल्ड एंड व्हाई डू वी फील फायर इज हॉट। द सेम द क्वेश्चन इट वाज बाय हुमैरा। Oh, that I told you because it depends upon the vibrations, the to and fro vibrations of the atoms composed, the substance is composed of. In case of that ice piece, the vibrations kinetic energy of those atoms is small as compared to the fire. In case of fire is hot. It's because of I have given the reason to Humera why it is hot. It's actually a chemical reaction. But is it like that the body temperature, why we feel, actually the question he has written, why we feel the body temperature of ours is higher than the ice and then we feel it is cold. So there is a temperature difference. Temperature difference. Temperature difference because heat always flows from high temperature to the lower temperature. When you touch the burner of a stove, heat gets transferred from burner to your body. And then we feel when you touch that heat will flow from our body to the body. That's a temperature difference. That is heat flow. सरताज अहमद कुलगाम से जुड़े हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। हेलो हेलो, खैर मकदम है आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर सरताज अहमद सरताज कुलगाम पे अर्ज करन। हां जनाब फरमाइए बस। मे ओस ये सवाल, ये रिलेशन क्या है बिटवीन वाट एंड वोल्ट? ओह ओके, what is watt? What is watt? Thank you. Watt and volt. Is there any general relation between Although watt it's and not volt? but I will answer. But I will answer. No problem. The watt is the SI unit of power, but volt is the SI unit of the potential difference or voltage. So the power is voltage into current. Okay. So you know understand? You will understand it like this. I will for him. Okay. Niyaz bhai, मैं थोड़ा सा time लेता हूँ. So power is nothing. It is voltage into current. He said, what is this is the relationship. It has a unit watt, SI unit, but it has a unit volt, and this is ampere. Volt into ampere is nothing but watt. दोनों को include करेंगे, दोनों को वोल्टेज आएगा तो पावर कहलाएगा। If we have a 1 volt and a 1 ampere, that is equal to 1 watt. 1 watt. Okay. जैसे mass and velocity and momentum होता है। Velocity and It momentum. was not relevant, but
It was not relevant, but it was a question, so we need to respond for that. Need to be respectful. We had some more questions on our mail. Gulam Mohammad Rathar likhte hain, Mr. Sajjad is a good teacher and honor to Dr. Ikram. Kindly tell me how does the digital thermometer works? That I actually within the class, it doesn't depend on the mercury. It depends on the electrical. Because electrical properties also change of substance. When it changes, actually these electrical properties, say in case of metals, the resistance decrease with increase in the temperature. And from against that resistance, they have calibrated it, and it gives a digital reading for that. So it works on the resistance of a material. Thank you. We had an Azim Sultan likhte hain, nice lecture. How can we measure and what is the temperature of a vacuum, sir? So see, I told you it's a vacuum. There is no substance in the vacuum. When there is no substance, there is no kinetic energy of the molecules. When there is, we can't measure their temperature. It's a property of a substance. Okay. What actually I have listened to the term absolute zero. That's what do we mean by say absolute zero? Zero just near zero to Kelvin. zero. That's why it's absolute zero. Near to zero basically. It's not exact zero. Any temperature from this Kelvin scale, you can call it as absolute temperature. Okay? Because I told you, because this was our need. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है हुर्मत अनंतनाग से. अस्सलाम वालेकुम. Sir, can we use laboratory thermometer to measure our body temperature? Sorry, can you repeat it? Can we use thermometer? Can we use laboratory thermometer to measure our body temperature? Can we use the laboratory thermometer, sir? Ikram sir, can we use laboratory thermometer to measure the temperature of a body? Laboratory thermometer to measure our body temperature. Yes, sir. Yes, it can be used because this is nothing but is a expansion, and expansion readings are there. You can take it. It's not a big challenge. Not a big challenge. We can use the principle always remain the same. Sir, आपने but it's a bit heavy. You can't hold it in your mouth. That's why we are not using it. It's a big one and we cannot hold it. Hold it in the mouth. We can hold it in the mouth. And आजकल वैसे ही digital thermometers का ज़माना है. अब mercury thermometers का क्या? Sir, आपने अभी जब freezing point of the water and freezing के बारे में बोला, we usually see the lakes freeze on the top. Sir, उस चीज़ को आप थोड़ा वजाहत या सराहत के साथ बताएं. ऐसा क्यों होता है कि it's on the top? And a bit slower between. It's not too quick. Actually, I don't know. This is my property. I am in the class. Same things happening there because of the shortage. Please. मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि वाटर में क्या है कि ये नेचर की तरफ से वाटर में एनॉमलस बिहेवियर है. हर कोई सबस्टेंस जो है on giving heat it expands. Only in case of water up to 4 degree centigrade. Its volume decrease. Opposite हो रहा है. This we call it. मैंने बताया ये क्यों हो रहा है? Because of the structural change. Structure इसका नेचर ने ऐसा कुछ दे दिया है. अब जब क्या होता है कि जब वाटर लो टेम्परेचर लो होता है, ये फ्रीज हो जाता है. फ्रीजिंग लेयर की डेंसिटी जो है अदरवाइज वाटर से ज्यादा है, मगर अंडर 4 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी डेंसिटी वाटर से कम है. क्योंकि अगर इसकी वाटर से कम है तो अदरवाइज अगर नॉर्मल वाटर होता जो नॉर्मली होता है तो ये इसको तो बॉटम पे लगना चाहिए बिकॉज हाई डेंसिटी था. लेकिन अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का ही डेंसिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसीलिए ये फिर टॉप पे आ जाता है बिकॉज ये वाटर के मुकाबले में लाइटर है. तो ये एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यूसुफ पुलवामा से. खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए. सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सजाद साहब आपके लिए सलाम. बड़ा पसंद तुहंद प्रोग्राम दिवान तो अस स्कूल त्रोमुत पढ़न त्रोमुत मगर तम पे मुस्तफीद गसान तुहंद यमो प्रोग्राम सतन. शुक्रिया सर. थैंक यू. शुक्रिया. सवाल छा तो इसकी सब्जेक्ट मुतल्लिक अर्ज जनाब 12 डिग्री फारेनहाइट पर आप छना गरकान. हाँ ठीक है, वो बॉइलिंग पॉइंट की बात कर. जी जी फरमाइए फरमाइए. तो ये अगर ये सेल्सियस में करूं ट्रांसफर ये कत सेल्सियस गई. अच्छा हाँ, वो मैंने बताया वो 100 डिग्री हो जाता है उस वक्त. मैंने 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. कन्वर्ट करके दे दिया कि वो 100 में. अच्छा, मोहम्मद यूसुफ पुलवामा से थे ये. हमारे साथ एक ईमेल और है. अजीम सुल्तान लिखते हैं, सर इफ एक्सप्लेन मी मेटल बॉल कैन पास थ्रू अ मेटल रिंग बट व्हेन द मेटल बॉल इज हीटेड हाउएवर इट गेट्स स्टक इन द रिंग. दैट्स व्हाई साइज डिफरेंस. मैंने बोला ना कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप हीट करते हो इसका साइज इंक्रीज हो जाता है. सो दैट्स व्हाई वो उसमें पास वी गिव द हीट टू अ मेटल and it increases, it expands and it gets stuck into this. Okay, शकील अहमद हमारे साथ जुड़े. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. जी खैर मकदम है आपका. वालेकुम. हाँ खैर वालेकुम अस्सलाम. खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में. वालेकुम सलाम सर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खैर मकदम है आपका. जी फरमाइए. सर मैं
शकील अहमद बोल रहा हूँ दरमारी से। जी फरमाइए सर, ये मुझे एक क्वेश्चन पूछा ना, वोल्टेज एंड किलो वोल्ट और वाट में डिफरेंस बताएंगे सर। किलो वोल्ट और वाट में डिफरेंस बताइए सर। किलो वोल्ट इज नथिंग, प्लीज आप डिफरेंट यूनिट है किलो वोल्ट वाट तो ये जस्ट लाइक ग्राम किलोग्राम यूनिट का डिफरेंस है। यूनिट वाट एक है और किलो वाट 1000 वोल्टेज में डिफरेंस होता है। बोलता हूँ ना, इसको अब ये खुश हो जाएगा ना। छोटी एक स्मॉल यूनिट है, बिग यूनिट है, इसलिए प्लीज इसने किलो वाट में बोला, वाट एंड किलो वाट। हाँ, तो मतलब मैं यहाँ देता हूँ इसके लिए। So 1 kilowatt. Okay, this is a prefix. Always write this small. मैं आपको बोल रहा हूँ जो केल्विन, एक और बात, क्योंकि अब क्वेश्चन भी आया, केल्विन को आप इधर डिग्री यूज किया करो, वो उस पे ऊपर मत लगाओ, बाकी फ़ारेनहाइट पे, डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाओ, केल्विन पे वो नहीं आते हैं, ठीक है। और दिस किलो इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल, लोअर केस, ओके। देन वाट, ओके, दिस इज नथिंग बट 1 किलो का मतलब है 10⁻³ और वाट फिर से वापस, सो दिस इज नथिंग बट दिस 10⁻³ बाइट्स। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अरसलान नवपुरा से। अस्सलाम वालेकुम। नवपुरा श्रीनगर से अरसलान जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, आर यू ऑन द लाइन सर? आप जुड़े हैं हमारे साथ? गालिबन लाइन ड्रॉप हुई है सर। जैसे अभी लैब्स के बारे में, ऐसे प्रैक्टिकल्स के बारे में हम बात करेंगे, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सर इकराम साहब, आप वैसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में डिपेंड रहते हो, अप्लाइड साइंसेज वहाँ ज़्यादा होता, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एट द बेसिक एंड एलिमेंट्री लेवल जो है स्टूडेंट्स की, उनमें प्रैक्टिकल्स करानी है, लैब्स इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है लैब तो। बेसिक जब पता नहीं होगा तो कैसे आप आगे कर पाएंगे। तो जो लैब है, कोई बेसिक्स तो जैसे कोई भी आप, जैसे सजाद सर ने भी बोला कि वी आर टीचिंग हियर द हिस्ट्री ऑफ साइंस, नॉट द साइंस ऑफ सब्जेक्ट। आप क्या बोल रहे हैं इस बारे में? सही बोला। मैं तो नियाज़ भाई, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मतलब पता नहीं, इट्स माई रिग्रेट ऑलवेज कि हम जो साइंस जिस तरीके से हमें पढ़ाना था वो हम उस तरीके से नहीं पढ़ा रहे। आई ऑलवेज रिग्रेट, नॉट इन कश्मीर, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की, मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ। इट शुड हैव बीन, मतलब जो ही वही पार्ट पढ़ा जो लैब में। कॉलर लेंगे हम फर्स्ट, इस पे रिस्पॉन्ड करें। शहजाद अहमद कोकरनाग से जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं शहजाद बोल रहा हूँ कुकरनाग से। मेरा एक क्वेश्चन था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में बताइए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? ये सर से मुझे सवाल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर? मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो हम केल्विन स्केल है जिस पे हम जब टेम्परेचर आता है, जो हम 0 पे आते हैं, कि ये एब्सोल्यूट 0 पे आ जाता है, एब्सोल्यूट 0। इट्स नॉट लाइक इन केस ऑफ सेल्सियस, वहां पर आपने 0, वो क्या एब्सोल्यूट 0 था? नहीं, वो एक्चुअली, बट केल्विन में आपको एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है, दैट्स व्हाई यू कॉल इट द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। Okay, thank you sir. There are a lot of questions, a lot of calls, and we had some emails also, but we cannot respond to all the questions because of this time constrictions and all these things, restrictions. I'm very thankful to Sajad, Dr. Sajad Ahmed Mir and Dr. Ikram, Mohammad Ikram. आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। Students, I'm very thankful, और नाज़रीन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार। Well friends, if you want to learn more, so do visit our YouTube channel for that, and now it's time to wrap up this particular show. See you next time inshallah ta'ala. Till then, stay blessed you all. Allah Hafiz Nasir. Thank you. Okay, thank you sir.